ہم سبحان بھائی سے مدنی پھول لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سلمان بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورج مکھی کے پھول آپ کے پاس رکھے ہوئے اوریجنل میں رکھے ہوئے یا خالی پینافیکس میں رکھے ہوئے؟ یہ پلاسٹک ہے سلمان بھائی۔ اچھا جی، پھول تو سورج مکھی کے ہی ہے لیکن یہ پلاسٹک کے ہے۔ پلاسٹک کے پھول ہیں۔ سورج مکھی کے پھول کی بھی ایک اپنی ہی بات ہے۔ بہرحال چلیں جی، یہ بھی ایک بات ہے اور اس پر بھی کبھی بات کریں گے۔ بہرحال آج سبحان بھائی سے ہم انشاءاللہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی سبحان بھائی، کیا عنوان لے رہے ہیں آج؟ آج ہمارا عنوان بہت ہی اہم ہے اور ہر انسان کے لیے، چاہے وہ جس بھی ایج گروپ کا ہو، اور وہ ہے یادداشت تیز کیسے کی جائے، ہاؤ ٹو شارپن یور میموری۔ ہم نے یادداشت اپنی تیز کیسے کرنی ہے۔ ارشاد۔ میں سب سے پہلے تو سلمان بھائی یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ جو انسان کی میموری ہے، مطلب ایک میموری کی ایک سپیس ہوتی ہے، سٹوریج ہوتی ہے۔ ہمارے موبائل کی ایک میموری ہوتی ہے اور اسی طرح سے لیپ ٹاپ کی ایک میموری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میموری سٹوریج ڈیوائس ہمیں ملی، یعنی دماغ، یہ دماغ جو ہے اس کی کوئی لمٹ ابھی تک پتہ نہیں چل پائی۔ یعنی نیور افریڈ دیٹ یور برین ول رن آؤٹ آف سٹوریج۔ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 2-3 سلسلے یا 2-3 پروگرامز، 8-10 نعتیں وہ موبائل فون میں سٹور کر لیں، تو سٹور کرنے کے بعد کیا ہوگا، آپ کا موبائل فون ہو سکتا ہے اس کی میموری فل ہو جائے، لیکن جب یہ بات ہوتی ہے ہمارے دماغ میں تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اٹ رن آؤٹ آف سٹوریج۔ اچھا، یہاں پر میموری کہتے کیسے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وٹ از میموری؟ یادداشت ہوتی کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہیومن لیو ان پریزنٹ۔ جو انسان ہے وہ حال میں جیتا ہے۔ جس طرح ابھی ہم یہاں پر موجود ہیں، ٹائم ہوا ہے تقریباً 10:04۔ آج جمعے کا دن ہے، ہم ابھی زندہ ہیں، ابھی جی رہے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، چھو رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اور مستقبل کے بارے میں we look forward for the future، اور مستقبل کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ دیر بعد ابھی جمعہ ہوگا، پھر عصر ہو جائے گی، شام ہوگی، کوئی نہ کوئی منصوبے ہمارے ہوں گے۔ لیکن جو ماضی ہے یہ وہ چیز ہے جو ہمارے حال کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ یعنی ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ماضی کے جو واقعات و حالات ہیں ان کے مطابق ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ان سے جو باتیں ہم نے سیکھی اس کے مطابق اپنے حال میں ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ماضی میں جو چیز ہم نے دیکھی، سنی، چکھی، چھوئی، یہی چیزیں انسان کی یادداشت بنتی ہیں۔ This is known as memory, the faculty in the human brain to interact or to attach the present with the past۔ کہ وہ چیز جو انسان کے دماغ کو ملی، کہ وہ جو چیز کو دیکھتا ہے اس کو اپنے ماضی سے جوڑ کر دماغ میں اس کو سٹور کر لیتا ہے۔ دماغ ایک بہت بڑا گودام ہے، اسی چیز کو میموری یا یادداشت کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیے کہ دماغ کے اندر ایک بڑا ہی زبردست قدرتی اور نیچرل میکنزم ہے اور ایک نظام بنا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہم یادداشت کے طور پہ لے کے جاتے ہیں نا، وہ خود بخود پرائیورٹائز ہوتا ہے۔ یعنی دماغ خود یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس میں سے کس کو اہمیت دینی ہے اور کس کو اہمیت نہیں دینی۔ اور جو چیز اہمیت والی ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اس کو دماغ لانگ ٹرم میموری میں لے کے جا کے یاد رکھ لیتا ہے، اور جو چیز کم اہمیت والی ہوتی ہے اس کو بھول دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، تاکہ دماغ اوور لوڈ نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بہت اہم ہے، وہ یہ کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو کہ دماغ لمبے عرصے کے لیے یاد رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ وہ چیز ہے جو ریپیٹیشن کے ساتھ ہو، ریپیٹیشن کے ساتھ ہو، جس کو آپ دہراتے رہیں۔ اگر آپ سبق پڑھتے ہیں، طالب العلم ہے، تو وہ سبق جو آپ دہراتے رہیں گے یا وہ چیز جو آپ دیکھتے رہیں گے، وہ چیز آپ کے دماغ میں رہے گی۔ دیکھیں، یہاں پر ایک چیز یہ تھی کہ کبھی کبھار ہمارے دماغ کا جو سٹور روم ہے، جو گودام ہے، اس میں سے ہم جو چیز نکالنا چاہتے ہیں وہ نکال نہیں پاتے۔ وقت آتا ہے اور ہم اس کو نکال نہیں پاتے، یاد نہیں رکھ پاتے، ریٹریو نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ خود بخود اس میموری کو ڈکے کر دیتا ہے، پرانی کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو میں بات آپ سے کہوں گا اپنے اسٹوڈنٹس سے،
तालिबुल इल्मों से कि जो चीज आप याद रखना चाहते हैं उसको रिपीट करते रहें, उसको दोहराते रहें। और फिर देयर इज नो गुड और बैड मेमोरी, देयर इज ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड मेमोरी। बहुत सी तहकीकात मैंने पढ़ी जिसमें ये नहीं था कि कोई गंदी अच्छी या बुरी अच्छी मेमोरी होती है। सारे दिमाग तकरीबन 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। एक इंसान ठीक पैदा हुआ, उसको कोई दिमागी मर्ज नहीं था, उसका दिमाग ठीक है। अब उसने अपने दिमाग को शार्प कितना किया, वो इकदामात उसने किए कि उसका दिमाग चलता रहे, जारी रहे, या उसने अपने दिमाग को खुद अपनी हरकतों की वजह से कुंद कर लिया, अपने दिमाग को उसने शार्प नहीं रहने दिया। ये चीज, ये फैसला हमने करना है। अच्छा, यहां पर एक और चीज है कि जी किस टाइम पर पढ़ा जाए या किस टाइम पर काम किया जाए तो वो चीज ज्यादा याद रहती है। आमतौर पे कहा जाता है कि जी सुबह के टाइम पर अगर पढ़ा जाए और उस टाइम पर चीज ज्यादा याद रहती है। हो सकता है ये इसलिए कहा जाता हो कि सारी रात की नींद के बाद इंसान फ्रेश होता है और सुबह के वक्त आमतौर पे डिस्टर्बेंस नहीं होती, यानी शोर शराबा नहीं होता, इंसान तसल्ली से बैठ के काम कर लेता है। ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन साइंस ये कहती है कि इंसान उस वक्त पढ़े, उस वक्त काम करे व्हेन हिज माइंड इज अवेक, जब उसका दिमाग जाग रहा है। अब ये चीजें मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह के टाइम पर इस चीज का होते हैं, कुछ लोगों को रात के वक्त ज्यादा चीज अच्छी याद रहती है। और साइंस ये भी कहती है कि ये 2 वक्त ऐसे हैं, सुबह का वक्त और दोपहर का वक्त, जो आंखों से आप देख के चीज याद रखते हैं वो सुबह के वक्त ज्यादा अच्छी याद रहती है, यानी जो विजुअल मेमोरी आपकी होती है। और जब आप अपनी याद की हुई चीजों को पुरानी मेमोरी के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाते हैं, वो दोपहर के वक्त ज्यादा ठीक रहती है। यानी आपने जो कुछ देखा, अब जो कुछ आपने देखा आपके माजी के साथ उसका रिलेशन तो कोई बनेगा ना। मिसाल के तौर पे आपने किसी रिश्तेदार को देखा, अब माजी में कब उसको देखा था, क्या किया था, ऑल दीज थिंग्स विल बी इंटरकनेक्टेड। तो सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, असल बात यह है कि आपको फोकस करना है, आपको तवज्जो देनी है। जो काम आप कर रहे हैं ना उस पे पूरी तवज्जो के साथ वो काम करें। एक वक्त में 10 काम कर लेंगे। मोबाइल फोन के ऊपर आप फेसबुक भी टच कर रहे हैं, मोबाइल फोन के ऊपर आपने इंस्टाग्राम भी खोला हुआ है, किसी से बात भी कर रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं, अपने घर में भी बात कर रहे हैं, तो फिर कोई चीज दिमाग रिटेन नहीं कर पाएगा, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहां पर मैं ये एक चीज अर्ज करता चलूं कि बच्चों के अंदर भी कोई खास चीज खास मौके पर अगर की जाए तो उसकी याददाश्त ठीक रहती है। अगर मैं आपसे पूछूं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, मुझे ये बताइए कि पिछले जुम्मे को आपने दोपहर को क्या खाना खाया था। हो सकता है आप में से कोई जवाब ना दे सके, हो सकता है कोई दे भी दे, लेकिन पिछले जुम्मे को दोपहर को आपने क्या खाना खाया था, इस चीज का जवाब देना मुश्किल है। लेकिन आपको तीसरी और चौथी क्लास में आज से कितना अरसा पहले फर्स्ट आने पर जो प्राइज मिला था, जो कप मिला था, वो आपको याद होगा। क्यों? वो एक खास चीज थी जो आपको याद रह गई, और ये चीज चूंकि आम चीज थी, रोज आप करते हैं, आपको याद नहीं रही। तो खास वक्त में, खास इवेंट पर, खास अंदाज से जो चीज की जाए वो याददाश्त का हिस्सा बन जाती है। अच्छा, अब यहां पर एक और मैं एक आपसे शेयर करता चलूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट तहकीक, कि वो कौन सी चीजें हैं जो याददाश्त को कमजोर करती हैं। और ऑटोमेटिकली अगर आप इन चीजों को नहीं करेंगे तो आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। उसमें ये हेल्थ लाइन की तहकीक है जो बड़ी मुस्तनद तहकीक होती है। बहुत से डॉक्टर्स मिलकर ये तहकीक करते हैं और बाकायदा हर तहकीक के पीछे जो रिसर्च की गई होती है उसको सपोर्ट भी करते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि डाइट और लाइफस्टाइल, इट इज हैविंग ए मेजर इंपैक्ट ऑन योर मेमोरी। यानी आप जो खा रहे हैं और आपकी जो जिंदगी गुजारने का अंदाज है, इसका आपकी याददाश्त पर बड़ा गहरा और डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अब आप हैरान होंगे सुन के कि शुगर ज्यादा खाने से, चीनी ज्यादा खाने से इंसान की याददाश्त मुतासिर होती है। 4000 अफराद पर यह तहकीक की गई जो मेरे सामने खुली हुई है, जो चीनी ज्यादा इस्तेमाल करते थे, और ये पता चला कि एडेड शुगर यानी ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने से इंसान का दिमाग भी आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ता चला जाता है और इसको सही चीज याद नहीं रहती। देयर इज नो नीड ऑफ एडेड शुगर। एक मर्द को दिन में 9 चम्मच चीनी चाहिए होती है और एक औरत को दिन में 6 चम्मच चीनी चाहिए होती है, और ये चीनी पहले ही हमारे खाने में मौजूद होती है।
चावल के अंदर, बिस्किट्स के अंदर, दीगर चीजों के अंदर, चाय के अंदर। अब आप ऊपर से चीनी ना डालें, ना सिर्फ आपकी याददाश्त ठीक रहेगी बल्कि आपका ओवरऑल जो जिंदगी गुजारना है वो भी ठीक रहेगा। एडेड शुगर, डोंट यूज एडेड शुगर। सलमान भाई यहां मैं एक और बात आपसे शेयर करता चलूं कि एक तहकीक ये भी बताती है कि आमतौर पे हमारे बच्चों के जो खाने होते हैं, जो सीरियल्स खिलाते हैं बच्चों को पाउडर में, आप समझते ही हैं जो बच्चों को चीजें खिलाई जाती हैं बचपन में, उसमें भी शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है। और बकायदा यूके की जो गवर्नमेंट है उसने इस पे खास एक्शन भी लिया कि ये जो शुगर बच्चे बचपन से खाते हैं खानों के अंदर जो छुपी हुई होती है, तो सारी जिंदगी उनको चीनी खाने की आदत पड़ जाती है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बोतलें वगैरह फिर जान नहीं छोड़ती। देखें जो दो जायके हैं, वैसे तो जायके ज्यादा हैं लेकिन दो जायके जो अहम तरीन है, मीठा और कड़वा। कड़वा जायका इंसान को फितरतन पसंद नहीं होता, इसलिए बच्चे आमतौर पे ऐसी सब्जियां नहीं खाते, दवाई इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मीठा जायका इंसान को फितरतन पसंद होता है, तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ट्रेनिंग दें और मीठा जो है इसको ना खाएं। नंबर 2, वेट गेन, यानी ओबेसिटी कैन लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इन्फ्लेमेशन। जो मोटापा होता है, जिनमें मोटापा आ जाता है, उनके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इंसुलिन पूरी तरह पैदा नहीं होती और वो शुगर की तरफ बढ़ते हैं। और एक नई तहकीक बिल्कुल मेरे सामने आई है, वो ये कि मोटापा अल्जाइमर्स की तरफ लेके जाता है। अल्जाइमर एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जिससे इंसान ये भूलना शुरू हो जाता है, बेसिक बातें भी भूल जाता है। बेसिक से मुराद उसको ये भूल जाएगा उसका नाम क्या है, वॉशरूम जाना भूल जाएगा और चाबी रखना भूल जाएगा, घर का रास्ता भूल जाएगा और फिर वो इंसान बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाता है। तो मोटापे से बचिए, खास तौर पे अगर छुट्टियों के दिन हो और उन दिनों में ऑनलाइन सर्विस तो खुली हुई है ना, आपने फोन किया, पिज्जा मंगा लिया, फोन किया, बर्गर मंगा लिया, घर में बैठे हुए हैं, खाना खाया, फिर 2 घंटे बाद खाना खा लिया, रात को उठ के खाना खाया। ये सारी हैबिट्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती मोटापे पे। अच्छा, यहां मैं एक और अहम चीज शेयर करता चलूं। लोग समझते हैं कि पैदल चलने से, एक्सरसाइज करने से वो मोटापा कम होता है। पैदल चलना, एक्सरसाइज करना बेहतरीन चीज है, वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी ए ह्यूमन कैन डू। बेहतरीन चीज है, पैदल चलने से बेहतर कोई चीज नहीं है। लेकिन मोटापा कम करना, इसमें पैदल चलने का बहुत कम रोल है। मोटापा कम करने का जो बेहतरीन रोल है, वो जो मुंह से आप खाना खा रहे होते हैं वो है कि आपने खाना क्या खाया। अपने खाने को कंट्रोल कीजिए, जंक फूड ना खाइए। और फिर याद रखने के लिए जो बेहतरीन चीज मौजूद है वो है गेट इनफ स्लीप। अगर आप अच्छा सोए हुए हो, यानी अच्छा सोए हुए हो और सोने के बाद उठें, तो आपका ब्रेन और ही तरीके से काम कर रहा होता है। अगर आपने नींद पूरी नहीं ली, 6 से 7 घंटे जो रिकमेंडेड स्लीप पैटर्न है, तो आपका दिमाग अपने ही पैदा किए हुए गंद में डूब जाता है। यानी जब इंसान सोता है तो दर हकीकत पूरे जिस्म के अंदर गंद साफ हो रहा होता है। एक थ्योरी ये भी है कि इंसान सोता इसलिए है कि जो मुख्तलिफ गंद पैदा हो जाता है, डेब्री जिसको कहा जाता है, DEBRIS, वो डेब्री जो है वो इंसान के दिमाग से खत्म होती है, दिमाग फ्रेश होता है। बहुत ही जरूरी है याददाश्त तेज रखने के लिए सोना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कई ममालिक ऐसे हैं जिसमें दौराने काम के दौरान, यानी जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनको कैट नैप दी जाती है। कैट नैप से मुराद के थोड़ी देर के लिए सो जाया जाए। आपने नोट किया होगा सलमान भाई, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर मुझे तो बड़ी अच्छी तरह याद है ये कि लेक्चर सुनते सुनते हल्की सी नींद आती थी ना, बिल्कुल हल्की सी, उसको पावर नैप कहते हैं। तो पावर नैप से मुराद ये होता है कि आप हल्का सा पीछे सर करते हैं और हल्की सी नींद के साथ उठ जाते हैं। ये हल्की सी नींद भी समझ लें, जो रिफ्रेश का बटन होता है ना, वो होता है, एकदम से इंसान दोबारा से उसकी एनर्जी फुल हो जाती है। तो ये जो बंदा सोया ना हो, वो जो ज्यादा गलतियां करता है, वो गलतियां होती है मैथमेटिकल एरर्स, यानी हिसाब के अंदर, सन याद रखने में अगर वो हिस्ट्री का है स्टूडेंट, या याददाश्त जो मैथमेटिकल होती है, डिजिटल, हिंसे याद रखने में उसको प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, ये साइकोलॉजी के 293 स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च की गई थी कि ये लोग अगर तो बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस
फोकस करें अपनी क्लास में, जब कोई बड़ा बात कर रहा हो, जब आप मदनी चैनल देख रहे हो, अमीर अहले सुन्नत के बारे में आप बात कर रहे हो, उनकी मलफूजात सुन रहे हो, उस वक्त आप फोकस करें, इधर उधर ना देखें। और ये सलमान भाई मैंने बड़ों में आदत देखी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम बड़ों के साथ बैठते हैं, और बिलखुसूस ये दुनियावी तौर पे भी जो लोग सीईओज होते हैं, बड़े सरकारी ओहदों पे होते हैं, नोट कीजिएगा ये एक वक्त में एक काम करते हैं और उस काम को तवज्जो के साथ करते हैं। क्योंकि ठीक है कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो अगर बात भूल भी जाए तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बात भूल जाना बहुत बड़ी एक हादसे और सानहे का बायस बन सकता है। तो इस हवाले से इन लोगों के लिए ये बड़ा ही जरूरी है कि ये तवज्जो के साथ सुने, तवज्जो के साथ उस बात को देखें और फिर उसको एब्जॉर्ब करें, और उनका दिमाग इतना ट्रेंड हुआ हो कि जब उस बात की मुस्तकबिल में जरूरत पड़े वो उसको अपने दिमाग के गोदाम से निकाल के लाएं और फिर उसको यूज करें। और बातों को भुलाने की भी आदत होनी चाहिए। ये इंसान को एक बहुत बड़ी नेमत मिली है कि बात को भूल जाए। हर बात अगर याद रहेगी तो वो तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। बातों को भूलना भी बहुत जरूरी होता है और वक्त पड़ने में बातों को भुला दिया करें। बहरहाल हमारे दिमाग में कोई डिलीट का बटन तो है नहीं कंप्यूटर की तरह, और रिसाइकल बिन तो बनी नहीं हुई कि हम डिलीट कर दें। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि बस नेगेटिव बातों को सोचा ना जाए। दुनिया में मेमोरी कंटेस्ट होते हैं कि किसकी याददाश्त बड़ी तेज है। लोगों ने इतना अपनी जहानत को शार्प किया होता है सलमान भाई कि मतलब आप यूं समझ लें कि जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जिसने बनाया ना, वो इतनी मोटी बुक उसने 19 मिनट में 20 मिनट में पूरी की पूरी याद करके दिखाई होगी। इस तरह का मतलब इससे मिलता जुलता कोई काम उसने किया होगा। अब वो बंदे का भी दिमाग का एमआरआई किया गया, बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरा आपका आम इंसानों का होता है, लेकिन उसने ट्रेनिंग के साथ अपने दिमाग को ऐसा किया। हमारे बुजुर्गाने दीन के बारे में आता है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कितनी अहादीस ज़बानी याद थी। इसी तरीके से दीगर उलमाए कराम को, दीगर फुक़हा को कितना कुछ ज़बानी याद रहता था। कोई एक दफा सुन लेता तो उसको ज़बानी याद रहता। तो फिर मैं इसरार करूंगा मदनी चैनल के नाजरीन, देयर इज नो गुड और बैड मेमोरी। अगर आप ठीक पैदा हुए, आपको अल्लाह के करम से कोई दिमागी मसला नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपनी मेमोरी को शार्प करें, इसको रुकने ना दे। पानी भी रुक जाए ना, अगर मिनरल वाटर भी होगा ना, उसको भी आप ठहरा रखेंगे उसमें से भी बू आ जाएगी। चलता पानी ठीक रहता है। अगर आप स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ में आप मेमोरी शार्प रखते थे, इम्तिहान के लिए तैयारी करते थे, सन याद करते थे, फलां सन में जंग हुई, फलां सन में वो पैदा हुआ, फलां सन के अंदर जो है वो फौत हुआ, याद रखते थे ना पाकिस्तान स्टडीज में, उर्दू के अंदर। लेकिन जब आपने पढ़ाई खत्म कर दी, उसके बाद आपने कारोबार ज्वाइन कर लिया या कुछ और कर लिया, अब आपके जहन को जो वो आदत पड़ी हुई थी याद रखने की, वो आदत आपके जहन को नहीं रही। तो आप हमें आके कह रहे होते कि जी याददाश्त के लिए दुआ करें, हम तो दुआ कर देंगे, आपको वजीफा भी बता देंगे, या अलीमु 21 बार पढ़ के पानी पर फूके और दम करके पी लें, इंशाल्लाह अल्लाह फायदा भी देगा। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें, अपनी रूटीन को बरकरार रखें, याद रखने की चीज को देखते रहें। जिस तरह तलवार को तेज करने के लिए रेती की जरूरत होती है, जिस तरह तलवार को तेज करने के लिए रेती की जरूरत होती है, दिमाग को तेज करने के लिए किताब की जरूरत होती है। किताब से अपना रिश्ता कभी भी ना तोड़ें, किताब से रिश्ता कायम रखें। विटामिन डी लेवल बड़ा जरूरी है। विटामिन डी धूप की रोशनी से मिलती है। अल्लाह की तरफ से हमारी जिल्द के नीचे मशीनें लगी हुई हैं, हर इंसान की जिल्द के नीचे मशीनें हैं। जब सूरज की रोशनी पड़ती है, वो मशीनें विटामिन डी बनाती हैं, और वो विटामिन डी बहुत जरूरी है याददाश्त के लिए। तो बहरहाल याददाश्त जो है ये इंसान की प्रायोरिटाइज होनी चाहिए, और अच्छी याददाश्त एक इंसान को कामयाब बनाती है। अगर उसको भूलने के, कुछ लोग जानबूझ के भी एक्टिंग करते हैं, हाँ क्या कहा था, हाँ इस तरह करते हैं ना, तो ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे जिंदगी में। उनके बड़े या मुआशरा उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। यू नीड टू बी वेरी शार्प। आपको एक अच्छी याददाश्त के साथ रहना चाहिए, वरना अगला बंदा आपको ड्यूटी असाइन नहीं करेगा अगली दफा। दुरुस्त फरमाया। और सुभान भाई ये बहुत शुक्रिया आपके मदनी फूलों के लिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने बड़ी अच्छी जो है वो रहनुमाई दी है। यहाँ मैं एक बात पे गौर कर रहा हूँ हाफिज़ साहब, जैसे सुभान भाई ने फरमाया कि बाद लोगों की आदत होती है कि बात है क्या कहा था, तो ये बाज़ औक़ात बंदे के अंदर एक छुपा हुआ शर भी होता है
कि अगले बंदे को चूंकि फंसाना होता है, इसको सही बात पता होती है कि भाई सही बात ये है, लेकिन चूंकि सामने वाले को मतलब काबू करना है, अभी वो मैदान में आया हुआ है, उसको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, गूंगे शैतान नहीं जैसे बंदा वो साकित अनिल हक की फाहुआ शैतानुल अखरस, जो हक सच से मतलब जो बोले, जिसको पता है हक सच है और वो बोल नहीं रहा और जो जरूरत है बताने की बता नहीं रहा, तो ऐसा बंदा तो गूंगा शैतान कहा गया है बंदे को, गूंगे शैतान बन के बैठ जाते डाल रहे होते हैं सलमान भाई, उसके लफ्ज निकलवा करना, उन लफ्जों के उलट फेर को पकड़कर उसको फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये हम वाकई आपने अच्छा इशारा किया है कि जो वो होता है ना शर अंदर छुपा हुआ, वो लोगों को इस तरह इस काम पर उभार रहा होता है। क्योंकि अगर ये सच बोलेगा तो फंस जाएगा ना भाई। दो बातें हैं, दो मौके हैं, आप हैं और सामने है। अगर ये सही बात बोल देगा तो खुद फंस जाएगा, क्योंकि ये गिल्टी बन रहा है। अब क्या करे, पता है लेकिन क्या करेगा, बोलेगा नहीं। अच्छा, दूसरा बंदा उसको, उसके पास विटनेस कोई नहीं, उसके पास कोई दलील नहीं अपनी बात की, तो अब ये क्या मतलब गूंगा बन के बैठ जाएगा। तो ये भी तरीकाकार याद रखिए, दुनिया में तो हम अपने आप को कोई ना कोई हीला बहाना करके, कोई चालाकी करके कोई अपने आप को बचा ही लें, लेकिन एक बार का खालिक कायनात की भी है, तो वहां फिर ये बच नहीं पाएगा। अगर ये बंदा कोई ऐसा हुआ ना कि जिसका मिजाज ये हो कि मैं तो गिरेबान पकड़ूंगा, तो फिर बंदा बच नहीं पाएगा। अच्छा, गिरेबान पकड़ूंगा वाला अंदाज भी वहां होना चाहिए जहां ये खुद इसका कोई कसूर हो ही ना। बात का ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ खुद भी किया होता है, थोड़ा कुछ किया होता है, लेकिन सामने वाला बहुत कुछ बना रहा होता है। तो इस पर गिरेबान आप तो जितना आप थोड़ा ज्यादा पकड़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो भी पकड़ लेगा। तो ये अंदाज है ना, हम आगे चल के क़यामत में पूछेंगे तो हम गिरेबान पकड़ेंगे, तो इस पे भी जरा देख लेना चाहिए। ये गिरेबान पकड़ने की बात तो हाफिज़ साहब बंदा वहां करे जहां इसका कसूर ही कोई नहीं, बिल्कुल इनोसेंट आदमी। जब